Good morning, students. Today we are going to study this chapter, the scientific point of view. Okay, the scientific point of view. Point of view means नज़रिया, दृष्टिकोण, दृष्टिकोण, नज़रिया, point of view in English. साइंटिफिक, वैज्ञानिक. तो ये चैप्टर हमारा है द साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू. वैज्ञानिक विचार, नो, दृष्टिकोण, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, वैज्ञानिक नज़रिया. तो जिंदगी में हम लोगों को वैज्ञानिक नज़रिए से हर चीज़ को समझने का प्रयास करना चाहिए. आउटलुक जो होता है व्यक्ति का, पॉइंट ऑफ व्यू, अदर वर्ड इज आउटलुक. तो पॉइंट ऑफ व्यू that should be reasonable. We must be able to understand, diagnose our problems. हमें अपनी समस्याओं को तार्किक ढंग से समझने का प्रयास करना है, तभी जाकर के आपकी संपूर्ण शिक्षा होगी. So, the scientific point of view is going to discuss with the matter of outlook. It will give us insight to find out the right outlook for life. जिंदगी जीने के लिए सही नज़रिए की जानकारी इस चैप्टर से आपको मिलेगी. तो without wasting time, we are going to start this chapter. First of all, we will read about the writer. So, writer is J.B.S. Halden. J.B.S. Halden has written this chapter. J.B.S. Burden Sanderson Halden, born 1892 and died 1964, was a versatile माने बहुमुखी, genius, प्रतिभाशाली. He studied Greek and Latin at Oxford and then went to London to do research in zoology. He was interested in a variety of subjects and at different times held such posts as reader in biochemistry in Cambridge, professor of genetics in London University, professor of physiology at the Royal Institute and professor of statistics at the Indian Statistical Institute in Calcutta. In an autobiographical sketch, he once said that he knew 11 languages. What a marvelous man he was! He claimed that he knew 11 languages. 11 भाषाएं उनको आती थी. The writer of the chapter knew 11 languages. Halden was a Marxist. सिद्धांतिक स्तर पर, सिद्धांतिक लेवल पर he was a Marxist. Marxist मतलब कम्युनिस्ट, साम्यवादी थे वो. And used to contribute articles to the Marxist Daily Worker. और इस प्रकार से वो मार्क्सिस्ट डेली वर्कर पेपर में अपना लेख भेजा करते थे. ऑन साइंटिफिक टॉपिक्स, उनके टॉपिक्स होते थे साइंस वाले, साइंटिफिक टॉपिक्स, रिटन इन अ स्टाइल विच इवन अ पर्सन विथ एवरेज एजुकेशन एंड could understand. The language of the writer was so easy that even a less educated person could easily understand that. तो मेरे दोस्तों, इस चैप्टर को अब तक जो हम लोग पढ़े लेखक के विषय में, ये सुनने से ये पता चला कि लेखक का काम है सहज भाषा का इस्तेमाल करना. आपकी भी राइटिंग जब हो, जब आप आंसर लिखें तो ऐसा लिखें, ऐसे शब्दों का चयन करें. यूज सच वर्ड्स विच मे बी अंडरस्टैंडेबल टू ऑल, जिसको कोई भी समझ सके.
सहज सुग्राह्य भाषा अच्छी भाषा मानी जाती है, तो बहुत लच्छेदार भारी भरकम शब्दों के विषय में के पीछे पड़ने की ज़रूरत नहीं है। वी हैव टू यूज सच वर्ड्स which can make other people understand the theme which I want to say, which is the ultimate aim of language. His works include Daedalus और साइंस। उन्होंने जो कार्य किए, जो लेख उन्होंने लिखा, जो उनका टॉपिक सब है, जो किताबें हैं उनकी, उनमें एक है डेडालस और साइंस एंड द फ्यूचर, पॉसिबल वर्ल्ड्स, साइंस एंड एथिक्स, and the inequality of man from which the present essay is taken. Our present essay is taken from the inequality of man. तो ये क्वेश्चन आपके लिए एग्जाम में बनेगा कि नेम द बुक द चैप्टर हैज बीन टेकन फ्रॉम। द आंसर विल बी द इनइक्वालिटी ऑफ मैन इज द नेम ऑफ बुक द प्रेजेंट चैप्टर हैज बीन टेकन फ्रॉम। इन दिस essay, इस लेख में हाल्डेन एक्सप्लेन्स व्हाई इट इज इम्पॉर्टेंट फॉर मैनकाइंड टू अडॉप्ट द साइंटिफिक स्टैंड पॉइंट्स। इस लेख में लेखक ने बताने का प्रयास किया है, व्याख्या किया है, एक्सप्लेन किया है इस फैक्ट को कि हमें जीवन में वैज्ञानिक दृष्टिकोण की आवश्यकता क्यों पड़ती है, दृष्टिकोण हमारा वैज्ञानिक क्यों होना चाहिए। He writes in an informative and thought-provoking style. His style is informative and thought-provoking. विचारोत्तेजक, विचार के लिए, सोचने के लिए मजबूर करने वाला यह लेख। We are going to start it today. So, up to this line we have read about the writer. So now we will see what should be in the chapter. The people of older generation or the rural people cover their head with a towel when they have to walk in the scorching sun. Why? Because they have to safeguard their head, they have to safeguard themselves from the scorching heat. सन स्ट्रोक न लग जाए, गर्मी से वो बेहोश न हो जाएं, so that they were putting towel on their heads. What do you understand by science? विज्ञान का मतलब क्या है? तो विज्ञान का मतलब विशेष ज्ञान। साइंस जो ऊपर से जो दिखाई पड़ता है सो नहीं, उससे हट के सोचे कोई तो प्रयोग और परीक्षण, एक्सपेरिमेंट के आधार पर जो टेस्टेड है, दैट सब्जेक्ट इज कॉल्ड साइंस। द प्रूफ, the concept which is tested on the basis of experiment is called science. What are the basic tools of science? What are the basic tools of science? The science deals with outlook, creativity, neutral attitude, disbelief. All these facts are the basic tools of science through which we can observe the things of nature, the rules of nature, which may be beneficial for life. What is scientific point of view? Scientific point of view is a way of thinking. Is science different from scientific point of view? How? No. Science and scientific point of view are finally one, but all people don't understand or study science in detail, but they must have scientific attitude, scientific point of view. दृष्टिकोण जिसका साइंटिफिक होगा, साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू जो उसको इसके पास में है, वो साइंस नहीं भी पढ़ा लिखा आदमी है, तभी ही विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द रीजन ऑफ द कंसेप्ट। अगर कोई बात मैंने उनको बताया तो उस बात के पीछे रीजन क्या है, वो रीजन को जानने का प्रयास करेंगे। तो रीजन के आधार पर, एक्सपेरिमेंट के आधार पर कोई किसी कंसेप्ट को समझने का प्रयास करे
तो समझिए कि दैट पर्सन हैज़ गॉट साइंटिफिक एटीट्यूड। द पर्सन मस्ट बी एबल टू आस्क व्हाई एंड हाउ। इफ a person is capable to ask such questions, then he is having scientific point of view. Otherwise, if you have to join your hands and bow your heads in the acceptance of the supremacy of anything, you will never raise any question. So that is called not having scientific point of view. साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू अगर होगा तो आदमी वो पेड़ से सेब नीचे गिरा एप्पल तो पूछा कि ये फल नीचे क्यों आया, ऊपर क्यों नहीं गया। तो ये जो नीचे आ रहा था वह फल स्वाभाविक रूप से नीचे आया। इस सीन को देख करके न्यूटन सेटिस्फाइड नहीं हुआ, उसके मन में डाउट पैदा हुआ, जिज्ञासा पैदा हुई। क्यूरियोसिटी अराउज्ड इन हिज माइंड व्हाई दैट एप्पल had not gone towards the sky. Why had it come on the earth? So this is called, my dear friends, scientific point of view. तो जिंदगी अगर जीना है, ठीक से समझना है इसे, तो you must possess scientific point of view. So this chapter is very, very important. This is important not only from examination point of view, but the theme, the moral of this chapter will give you insight to find out the path of your life. So we are going to start now. जैसे मेरे दोस्तों, मैं आपको हर वीडियो में हर चैप्टर को लाइन बाय लाइन पढ़ाने में यकीन करता हूँ। आई बिलीव इन द टीचिंग थ्रू माइक्रो टीचिंग मेथड। माइक्रो टीचिंग मेथड को मैं ऑप्ट करता हूँ। इसका मतलब है कि हर छोटी बड़ी बात सबको बताया जाए। तो फॉर दैट दिस इज लाइन बाय लाइन टीचिंग, साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू। साइंस एफेक्ट्स प्रभावित करता है द एवरेज मैन एंड वीमेन इन टू वेज ऑलरेडी। विज्ञान आदमी औरत को दो तरह से प्रभावित करता है। ही और शी बेनिफिट्स बाय इट्स एप्लीकेशंस। दोनों को इसके इस्तेमाल से लाभ होता है। जैसे ड्राइविंग इन अ मोटर कार और ओमनी बस इंस्टीड ऑफ ए हॉर्स ड्राउन व्हीकल। घोड़े के द्वारा खींची गई गाड़ी के बनिस्पत वो मोटर कार में, बस में अगर जाता है तो साइंस का यूज कर रहा है, टेक्नोलॉजी का। बीइंग ट्रीटेड फॉर डिजीज बाय ए डॉक्टर और सर्जन रेदर देन ए विच। किसी जादूगरनी, किसी डाइन, किसी ओझा या ओझाइन से ये अपना इलाज करवाने के बनिस्पत वह किसी डॉक्टर या सर्जन से अपनी चिकित्सा करा रहा है, तो साइंटिफिक मेथड का यूज कर रहा है। ही और शी इज गेटिंग द बेनिफिट्स ऑफ साइंटिफिक टेक्नोलॉजी एंड बीइंग किल्ड विथ एन ऑटोमेटिक पिस्टल और ए शेल इन प्लेस ऑफ ए डैगर और ए बैटल एक्स। तो डैगर से या बैटल एक्स से नहीं मर के ऑटोमेटिक पिस्टल और शेल से मरता है, तो मतलब है कि ज़्यादा वो साइंटिफिक तरीके से मर रहा है, मतलब वो साइंस का यूज कर रहा है। इट ऑल्सो अफेक्ट्स हिज और हर ओपिनियंस। ये उनके विचारों को भी प्रभावित करता है। ऑलमोस्ट एवरीवन बिलीव्स दैट द अर्थ इज राउंड। प्रायः सभी लोग यकीन करते हैं कि अर्थ क्या है, तो राउंड है। एंड द हेवेंस नियरली एम्प्टी। और हेवन क्या है, स्वर्ग, तो लगभग खाली है। इंस्टीड ऑफ सॉलिड, वह ठोस नहीं है। एंड वी आर बिगिनिंग टू बिलीव इन आवर एनिमल एंसेस्ट्री एंड द पॉसिबिलिटी ऑफ वास्ट इम्प्रूवमेंट्स इन ह्यूमन नेचर बाय बायोलॉजिकल मेथड्स। और आजकल तो अब विज्ञान के जरिए हम लोग यकीन करने लगे हैं कि हमारे पूर्वज एनिमल थे, एनिमल एंसेस्ट्री, और इसके द्वारा मनुष्य के नेचर में विकास की असीम संभावनाएं हैं। अगर बायोलॉजिकल मेथड को स्वीकार किया जाए तो ह्यूमन नेचर हैज़ गॉट ए वास्ट इम्प्रूवमेंट, ए पॉसिबिलिटी ऑफ वास्ट इम्प्रूवमेंट्स। बट साइंस कैन डू समथिंग फार बिगर। लेकिन साइंस क्या है,
इन चीज़ों से भी आगे है। कैन डू समथिंग फार बिगर फॉर द ह्यूमन माइंड दैन द सब्सटीट्यूशन ऑफ वन सेट ऑफ बिलीव्स फॉर अनदर और द इनकलकेशन ऑफ स्केप्टिसिज्म। स्केप्टिसिज्म मतलब शक। साइंस का आदमी शक करता है, जो प्रेजेंट में हो रहा है उस पर पूछेगा क्यों, व्हाई, हाउ, वेयर, व्हेन, क्वेश्चन। तो ये स्केप्टिसिज्म, जो दिखता है उसको नहीं मानता है, वो स्केप्टिक होता है। साइंटिस्ट पर्सन हैजंट गॉट फेथ व्हाट इज गोइंग ऑन इन दैट, दे आर ऑलवेज इनकलकेटिंग इन स्केप्टिसिज्म। वो स्केप्टिसिज्म में भागते हैं, स्केप्टिक हो जाते हैं, मतलब वो जो है उस पर डाउट करते हैं। इट कैन ग्रेजुअली स्प्रेड अमॉन्ग ह्यूमैनिटी एज ए होल द पॉइंट ऑफ व्यू दैट प्रिवेल्स अमॉन्ग रिसर्च वर्कर्स। इट कैन ग्रेजुअली स्प्रेड अमॉन्ग ह्यूमैनिटी, यह लगातार धीरे धीरे फैल सकता है पूरे मानव जाति के बीच। एज ए होल द पॉइंट ऑफ व्यू, इसे आप दृष्टिकोण कह सकते हैं। दैट प्रिवेल्स अमॉन्ग रिसर्च वर्कर्स, जो शोध करने वालों के बीच में ये आइडिया है। एंड हैज इनेबल्ड ए फ्यू थाउजेंड मेन एंड ए फ्यू डॉजन वीमेन टू क्रिएट द साइंस ऑन विच मॉडर्न सिविलाइजेशन रेस्ट। और इस प्रकार से हजारों स्त्री पुरुषों को यह अवसर मिला है कि वो विज्ञान की तकनीकों का इस्तेमाल करें जिस पर मानव सभ्यता, वर्तमान मानव सभ्यता आधारित है। फॉर इफ वी आर टू कंट्रोल आवर ओन एंड वन अनदर्स एक्शंस एज वी आर लर्निंग टू कंट्रोल नेचर। जैसे मनुष्य के सामने सबसे बड़ी समस्या क्या है? कंट्रोलिंग कैपेसिटी। हमें नेचर को कंट्रोल करना है, वी हैव टू कंट्रोल अदर्स। फॉर दैट वी हैव टू एक्सेप्ट द इम्पॉर्टेंस ऑफ द साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू। ये साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू का इम्पॉर्टेंस मस्ट कम आउट ऑफ द लेबोरेटरी एंड बी अप्लाइड टू द इवेंट्स ऑफ डेली लाइफ। साइंस का इस्तेमाल, साइंटिफिक एटीट्यूड का इस्तेमाल होना चाहिए डेली लाइफ में। दिन प्रतिदिन की बातों में साइंटिफिक एटीट्यूड शुड बी एप्लीकेबल। इट इज फुलिश to think that the outlook which has already revolutionized industry, agriculture, war and medicine will prove useless when applied to the family, the nation or the human race। जिस विज्ञान ने इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर, वॉर और मेडिसिन को इतना आगे बढ़ाया, उसको अगर फैमिली, नेशन और ह्यूमन में लगाया जाए तो बेकार हो जाएगा, ऐसा नहीं है। That will be benefited. So, first of all, we have to accept the importance of scientific attitude. Belief की जगह scientific attitude होना चाहिए। Questioning capacity should be given priority, should be given dominance over belief. Unfortunately, the growing realization of this fact is opening the door to innumerable false prophets who are advertising their own pet theories in sociology as scientific। बहुत सारे लोग दुर्भाग्य से ऐसे भी हैं जो सोशोलॉजी के नाम पर, वैज्ञानिक बात कहने के नाम पर फॉल्स प्रोफेट बन गए हैं और वो तरह तरह का थियोरी पेश करते हैं। साइंस इज कंटिन्यूअली टेलिंग अस थ्रू देयर माउथ्स दैट वी आर डूम्ड अनलेस we give up smoking, adopt or abolish birth control and so forth। साइंस से पता चलता है कि भाई आपको स्मोकिंग नहीं छोड़ेंगे, एबोलिश उसको त्याग नहीं करेंगे, गलत हैबिट को, बर्थ कंट्रोल नहीं करोगे तो ये जीवन आपका कंट्रोल होने वाला नहीं है। यू विल गो टू हेल, आप बर्बाद हो जाएंगे। तो ये सामाजिकता के स्तर पर भी ये जो मेजर्स हैं, टॉपिक जैसे बर्थ कंट्रोल, स्मोकिंग कंट्रोल, अदरवाइज यू विल गो टू हेल।
So this is scientific attitude. Now it is not my object to support my any scientific theory. राइटर का ये विचार नहीं है कि किसी साइंटिफिक सिद्धांत को माने, किसी के पक्ष में हो या नहीं हो, बट मियरली द साइंटिफिक स्टैंड पॉइंट। वो कहता है कि ओनली साइंटिफिक स्टैंड पॉइंट, साइंटिफिक नज़रिया, साइंटिफिक दृष्टिकोण, वैज्ञानिक सोच, वैज्ञानिक मानसिकता का विकास करना जरूरी है। व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दैट स्टैंड पॉइंट? तो उसकी क्या खूबी है, क्या उसके गुण हैं, इसकी बात करते हैं। इन द फर्स्ट प्लेस, सबसे पहले तो यह है, प्रथम, इट अटेम्प्ट्स टू बी ट्रूथफुल, सच्चा होना चाहिए। साइंटिफिक एटीट्यूड का मतलब है दैट शुड बी ट्रूथफुल एंड देयरफॉर इम्पार्शियल, वह निष्पक्ष होना चाहिए। इम्पार्शियल, ट्रूथफुल एंड इम्पार्शियल, एंड इट कैरेज इम्पार्शियलिटी ए ग्रेट डील फर्दर दैन डज द लीगल पॉइंट ऑफ व्यू। इसको निष्पक्ष तो इतना होना चाहिए कि लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से भी आगे हो। ग्रेट डील फर्दर दैन डज द लीगल पॉइंट ऑफ व्यू, कानूनी दृष्टिकोण से भी ज़्यादा इसको एक्यूरेट होना चाहिए। ए गुड जज विल ट्राई टू बी इम्पार्शियल, जज होगा वो क्या करेगा, कोई इम्पार्शियल रहेगा। मिस्टर जॉन स्मिथ एंड मिस्टर चैंग सियांग, मान लो कि चैंग सिंह दो आदमी और चांग सिंह और मिस्टर जॉन स्मिथ दो आदमी है, तो जज अगर कोई फैसला करेगा, दोनों के केस की सुनवाई करेगा, तो दोनों के मैटर पर निष्पक्ष रहेगा, दोनों के अपराध को देखेगा, जो दोषी होगा उसको पनिशमेंट करेगा। लेकिन एक गुड साइंटिस्ट विल बी इम्पार्शियल बिटवीन मिस्टर स्मिथ, ए टेप वर्म एंड द सोलर सिस्टम। एक साइंटिस्ट क्या करेगा, तो मिस्टर स्मिथ मैंने इंसान के और टेप वर्म जो है कीड़ा टेप वर्म, वो और सोलर सिस्टम, ये तीनों के प्रति और निष्पक्ष रहेगा। मतलब ही विल नेवर फेवर एनी वन, वो सबको, तीनों को समान नज़र से देखेगा, तीनों को इस रूप में देखेगा एज दे आर द पार्ट ऑफ द नेचर, विच वुड लीड हिम टू थ्रो इट अवे इंस्टीड ऑफ स्टडिंग इट एज केयरफुल्ली एज ए स्टेचू और सिम्फनी। वह इन चीज़ों का अध्ययन इतना ध्यान से करेगा जैसे कोई मूर्तिकार मूर्ति का अध्ययन करता है, या संगीतकार संगीत का किसी का स्टडी करता है। एंड हिज यो फॉर द सोलर सिस्टम, वह सोलर सिस्टम को प्रेज करेगा, विच लेड हिज प्रेडिसेसर्स इधर टू वर्शिप इट्स कंस्टिट्यूएंट्स और एट लीस्ट टू रिगार्ड देम एज इनस्क्रूटेबल सर्वेंट्स ऑफ द ऑलमाइटी, टू एक्सॉल्टेड फॉर ह्यूमन एक्सपीरियंसन। वह सनलाइट को, सोलर सिस्टम को इस नज़रिए से देखेगा कि उसमें देवता लोग रहते थे, ऑलमाइटी का वो पार्ट है, जिसको उसको पूर्वजों ने पूजा, उसको वह जानेगा श्रद्धा के विचार से। सच एन एटीट्यूड लीड्स द साइंटिस्ट टू ए क्यूरियस मिक्सचर ऑफ प्राइड एंड ह्यूमिलिटी। इस प्रकार से साइंटिस्ट को क्या होता है, प्राइड भी होता है, गर्व होता है अपने सबको एक नज़र से देखने के तरीके पर, और ह्यूमिलिटी भी होती है, उसे छोटा होने का एहसास भी होता है। बिकॉज ही एक्सेप्ट्स दैट, ए साइंटिस्ट पर्सन एक्सेप्ट्स दैट all living beings or creatures of nature, living, non-living also, all beings and things of this nature are as equal, as similar as the human beings. न कोई इंसान से बड़ा है, न कोई इंसान से छोटा है। all are the parts of human, are the parts of the nature and all are equal. तो ये नेचर, इसी कारण से साइंटिस्ट को फील होता है ये प्राइड भी और ह्यूमिलिटी भी। The solar system turns out to be a group of bodies, rather small in comparison with many of their neighbors, and executing their movements according to simple and easily intelligible laws. और उस प्रकार से वो सोलर सिस्टम को इस रूप में समझता है कि वो नक्षत्र मंडल है जो अपने पड़ोसियों से कंपेयर होता है और मूवमेंट के विषय में जानकारी देता है। सिंपल एंड इजीली इंटेलिजिबल लॉज, जिसको समझने से हमें सिंपल और इंटेलिजिबल नियमों के विषय में जानकारी मिलती है। बट ही हिमसेल्फ इज ए रेदर एवरेंट मेंबर ऑफ द सेम ऑर्डर एज द मंकीज,
लेकिन वह इंसान खुद, वह साइंटिस्ट खुद स्वयं हिमसेल्फ इज द पार्ट ऑफ द सेम ऑर्डर in which monkeys were also, while his mind is at the mercy of a number of chemical processes in his body which he can understand but little and control hardly at all. और उसको पता होता है कि उसका बॉडी केमिकल प्रोसेस से गुजर रहा है, जिसको वो समझ तो सकता है लेकिन कंट्रोल नहीं कर सकता है. इन सो फार एज इट प्लेसेज ऑल फेनोमेना ऑन द सेम इमोशनल लेवल, और इस प्रकार से वह सबको समझता है उसी इमोशनल लेवल पर. द साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू में बी कॉल्ड द गॉड्स आई व्यू. इस प्रकार से निष्पक्षता के कारण उसे आप साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू को गॉड्स आई व्यू कह सकते हैं. ईश्वरीय दृष्टिकोण क्या है? तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण है. बट इट डिफर्स प्रोफाउंडली. मैंने गॉड्स व्यू क्यों कहा गया उसको? कि गॉड भी किसी में पार्शियलिटी नहीं करता है, वह सबको एक नज़र से देखता है. इन द सेम वे this scientific attitude also deals with the same eyesight, so it is compared to God's eye view, but it differs profoundly from that which religions have attributed to the Almighty in being ethically neutral. लेकिन जो धार्मिक लोगों ने जो ईश्वर को जिस रूप में पूजा है उससे यह बिल्कुल अलग है. एथिकल न्यूट्रल, गॉड को जो उन्होंने न्यूट्रल समझा, एथिकल न्यूट्रल वो नहीं है. ये उससे हटके अंडरस्टैंडेबल है. जो समझ जाएगा आदमी तो वो खुद ही भगवान के बराबर पहुंच जाएगा. तो ये साइंटिस्ट का गॉड और धार्मिक आदमी का गॉड, रिलीजियस पीपल का गॉड, दोनों दो चीज़ है. साइंस कैनॉट डिटरमाइन व्हाट इज राइट एंड रॉन्ग. धार्मिक दुनिया में हम लोग कहते हैं कि गलत है, सही है, पाप है, ये पुण्य है. बट साइंस कैनॉट डिटरमाइन. साइंस कुछ भी नहीं कहता है कि राइट और रॉन्ग. एंड शुड ट्राई नॉट ट्राई टू. साइंस को ऐसा करना भी नहीं है, नहीं चाहिए. इट कैन वर्क आउट द कंसिक्वेंसेज ऑफ वेरियस एक्शंस बट इट कैनॉट पास जजमेंट ऑन देम. सब तरह की प्रक्रियाओं को समझेगा लेकिन उस पर जजमेंट नहीं देगा, निर्णय नहीं देगा कि ये सही है कि ये गलत है. जो है सो है. द बैक्टीरियोलॉजिस्ट कैन मियरली पॉइंट आउट that pollution of public water supply is likely to cause as many deaths as letting off a bomb in the public street. जितना पब्लिक स्ट्रीट में बम फूटने से बर्बादी होगी उतनी ही बर्बादी होगी पानी गंदा रहेगा तो पोल्यूटेड पानी पीने से. बट ही इज नो बेटर इक्विप्ड देन एनी वन एल्स इन पोसेसन ऑफ द नॉलेज ही हैज़ गेन्ड फॉर डिटरमाइनिंग वेदर दीज टू एक्ट्स आर इक्वली रॉन्ग. लेकिन ये जो बम वाली बात है या जो कीटाणु से प्रदूषित हो गया है आपका पानी, ये दोनों का वह पार्ट भी है. क्योंकि समाज में ऐसा नहीं है कि साइंटिस्ट है तो उस पर असर नहीं पड़ेगा. ये कोरोना वायरस है तो उसका एक्शन सब पर हुआ. तो साइंटिस्ट वो समझते हुए भी उसी का पार्ट है खुद, वो उस पर भी इसका असर पड़ेगा. तो दोनों में कौन गलत है कौन सही है इससे उसको मतलब नहीं है. ऐसा होगा, बम फटेगा तो लोग मरेंगे, बीमारी होगी तो लोग मरेंगे. The enemies of science alternately abuse its exponents for being deaf to moral considerations. साइंस के जो विरोधी हैं उस पर नैतिकता की कमी का आरोप लगाते हैं. एंड फॉर इंटरफेयरिंग इन एथिकल प्रॉब्लम्स, और धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप का आरोप लगाते हैं. बोथ ऑफ देज क्रिटिसिज्म कैनॉट बी राइट. लेकिन ये गलत है. साइंटिफिक एटीट्यूड मीन्स अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट्स इन राइट मैनर ऑन द बेसिस ऑफ रीजन एंड एक्सपेरिमेंट. सो ये बात हुई. आपको ये क्वेश्चन आंसर उसके बाद कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेज करना है. ये मैंने भर दिया है. ड्राइविंग इन ए मोटर कार इज द एग्जाम्पल ऑफ द बेनिफिट्स ऑफ साइंस. एन एग्जाम्पल ऑफ द इम्पैक्ट ऑफ साइंस ऑन आवर ओपिनियंस इज inculcation of skepticism. The object of the author in this essay is to inculcate the scientific attitude, outlook. The best utilization of science is to create scientific view. The two charges against science are lack of morality and interfering in ethical problems. ये मैंने किया आपको. आफ्टर दैट ये क्वेश्चन आंसर है. तो इस क्वेश्चन आंसर को नेम टू वेज इन विच साइंस एफेक्ट्स एवरेज मैन एंड वुमेन. दो तरीका बताइए कि साइंस आदमी को इफेक्टेड करता है, प्रभावित करता है.
तो पहला है कि साइंटिफिक एटीट्यूड लाइफ में आता है, और दूसरा है कि इक्विपमेंट्स मिलते हैं, वी गेट टेक्नोलॉजी फर्स्ट हैंड, एंड सेकेंड हैंड इज वी गेट साइंटिफिक एटीट्यूड. What do you understand by a scientific point of view? It is a thinking pattern. When we think on the basis of reason and experiment, we are having scientific point of view. Can it help us in our daily life? Yes, it can help us in understanding the concept in right way. What does impartiality mean in connection with scientific standpoints? Impartiality in scientific standpoints mean, इम्पार्शियलिटी मतलब निष्पक्षता. मतलब यह है कि जो है सो है, नथिंग इज गुड, नथिंग इज बैड. साइंटिफिक थिंकिंग का मतलब यही है कि आपको न बुरा है न भला है, न पाप है न पुण्य है, जो है सो है. ये थिंग ऑफ नेचर, प्रोसेस ऑफ नेचर, इट इज़ अ वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग नेचर इन द राइट वे. सो व्हाट इज, वी हैव टू एक्सेप्ट दैट विदाउट थिंकिंग it good or bad. So after that, how is impartiality in scientific point of view different from legal point of view? A scientific point of view legal point of view से ज़्यादा accurate है. Scientific point of view is more accurate than that of legal point of view, because legal point of view is only thinking among humans. एक आदमी का दूसरे आदमी के साथ इंसाफ, उसमें सत्य की खोज. और ये साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू थिंक्स अबाउट ऑल थिंग्स एंड बीइंग्स. इट थिंक्स अबाउट ह्यूमंस, थिंक्स अबाउट टेपवर्म, थिंक्स अबाउट सोलर सिस्टम, एवरीथिंग. व्हाट लीड्स द साइंटिस्ट टू प्राइड एंड ह्यूमिलिटी? साइंटिस्ट अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी वन, एवरीथिंग with equality. That is the matter of pride, and the same is the matter of humility, because they don't think that humans are the supreme creation of nature. No. What makes it difficult for the scientist to understand his mind? What makes it difficult for the scientist to understand his mind? It is very difficult to understand scientist mind, because they think only on the basis of reason. They have not got any personal idea or opinion. They have only to think on the basis of what is found as a law of nature, as a process of nature. So, what do you understand by God's eye view? God's eye view means equality, impartiality, and on the basis of reason. When or how may scientific point of view be called God's eye view? Yeah, when we think a matter without any partiality, with impartiality, with equality, we don't consider human beings supreme, we consider all things and beings as the part of nature. That type of thinking is called scientific point of view, and so in this sense this is God's eye view also. Can science determine what is right or wrong? No, science cannot determine what is right or wrong. It accepts everything with equality. They are the part of nature. This is called scientific attitude. So this is very good chapter. I think you have understood. So this is our first video for this chapter. The second video for this chapter I will make soon. So आपने इसको देखा सुना, थैंक यू फॉर दैट. देखते रहिए इसी तरह से, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं, एंड यू विल शेयर, लाइक. थैंक यू फॉर व्यूइंग. हैव ए नाइस डे.